Hello, Namaste, Assalamu alaikum. Sat Sri Akal, Game show. Swagatam to my YouTube channel, The Ordinary Woman KP Vlogs. तो आज हम लेकर आ रहे हैं अ वेरी प्रेशियस स्टोरी ऑफ आवर लाइफ, दैट इज़ द लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी ऑफ कियान. Yeah. एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट Part. ऑफ आवर लाइफ है. सो वील बी वेरी ग्लैड टू शेयर इट विथ यू एंड एनी न्यू मॉम्स और द वंस हु आर एक्सपेक्टिंग. होपफुली इट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू, द एक्सपीरियंस दैट आई हैड. जो प्लान कर रहे हैं या डाउटफुल है या Yeah, we'll try and share because we don't want to make the video very long and bore you people, but let me give you a disclaimer. It is going to be a bit long video, so you can grab a cup of coffee and some biscuits or pakoda. Anyways, lockdown चल रहा है, तो I'm sure you would be trying out something or the other during this quarantine period. So grab a cup of coffee or tea or something that you like to eat or drink, and you can continue watching this video. टॉकिंग अबाउट द लॉकडाउन, यहाँ पे एक अपडेट है. तो द UAE गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ डिसीजन बिकॉज इट्स द रमदान मंथ गोइंग ऑन. सो हैप्पी रमदान करीम टू द फॉलोअर्स हु आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस रमदान. एंड दोज आर नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट द रमजान. लेकिन यूएई में सब लोग सेलिब्रेट करते ही हैं. इट्स अ फेस्टिवल दैट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर. 30% लॉकडाउन रिलीज़ करने वाले हैं. दैट इज़ ऑफिस स्टाफ में 30% पीपल कैन स्टार्ट वर्किंग, एंड ऐसा स्लोली मार्केट्स ओपन कर रहे हैं. एंड बिकॉज सो दैट पीपल कैन कंटिन्यू देयर शॉपिंग फॉर रमदान, एंड इट शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस फॉर सेलिब्रेटिंग रमदान. सो थोड़ा बहुत कर्फ्यू उन लोगों ने हटा दिया है जो कंटिन्यूस 3 हफ्ते से चल रहा था. सो इट्स समथिंग पॉजिटिव, एंड होपफुली द COVID-19 ड्यूरिंग दिस होली मंथ विल बी क्योर्ड. Inshallah, we can hope for that. Yeah. And on that note, let us begin very positive story of our life, that is the labor and delivery story of our baby Kian. Okay, so let me tell you, Kian is 1 year old. वो April 10th 2020 को 1 year complete किया उसने. So like all other married couples, newly married couples, we were also kind of hesitant कि करना है नहीं करना है, कब करना है. Then finally we decided कि let's do it. Yeah. एंड वो भी क्योंकि उसका भी एक मज़ा है. आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड बिकॉज वी वर जस्ट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेज. ये टालने के लिए हम लोग बात भी नहीं करते थे इसके बारे में. वी वर क्वाइट बिजी विथ आवर वर्क क्योंकि आई केम टू UAE. इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ जॉब हियर, एंड देन आई वॉज ऑलमोस्ट सेटल्ड इन दैट जॉब. एंड देन देयर वर दिस problems where I saw some of my colleagues were not able to conceive, and many people who were trying and who had taken it very lightly, just like us. We think that everything is fine with us, but you never know, this age factor is really very important. I may be sounding very cliched like old uncles and aunties, but let me tell you, we thought that हम ऐसे try करेंगे और ऐसे हो जाएगा, but it was not that easy because I saw these kind of incidents. I started putting that into his head that we should actually think, because it's not that easy. We feel that we are very healthy, we are very young and हो जाएगा वगैरह. So it's not like that. काफ़ी सारे young लोग जो 25 plus हैं, they were finding it difficult to conceive. So that's when दिमाग का वो बत्ती जला. First of all, you need to decide you want a baby or you don't want a baby. अगर you are not in that zone at all, then it's not an issue. But somewhere down the line you're confused, मतलब आपके दिल में है कि you want a baby maybe after few years, then age factor is very important. So like that, then we sat and discussed, and we were like, okay, let's just start trying. We were like, okay, first attempt में हो जाएगा. तो we tried, नहीं हुआ. फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, एंड वी वर लाइक ओके ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा, मे बी some ovulation skip हो गया. I mean तभी we were not even tracking the ovulation. I had a period tracker on my mobile, and I used to just update my period dates on that, nothing else. Then second month हो गया, फिर से conceive नहीं हो पा रहा था. Third month गया, again it was, then we were getting scared like something is wrong somewhere. तो क्या गड़बड़ है. Already I was seeing so much around me, and I was like, oh my god, what is this? Because आजकल का जो lifestyle है, that is not good.
क्योंकि हम इतना ऑयली जंक फूड और काफ़ी सारा जो बाहर का खाना है वी कंज्यूम करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल ओनली हम जैसे यंग लोगों को भी तकलीफ हो रहा है. पीपल हैव टू गो फॉर IVF. हमारे पेरेंट्स के ज़माने में ये सब नहीं था. दिस बाहर का जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑल दिस स्टफ्स और नॉट, जो घर पे बनता था वही खाना था, दैट्स ऑल. So because of all these things, this is affecting our health. अच्छा हुआ we at least started trying, and then I think in the fifth, हमने कुछ we had googled and we found out about that app or something. Yeah, there was Then, a Flow yeah. app. That Flow app is really very helpful. It is not exact. Nobody can predict your ovulation exactly. Ovulation kits available है market में. I don't know how far it is correct, but I started using this Flow app. And I was tracking, put all the details of my periods, previous periods, all that, and it was giving me a prediction कि आपका highly fertile day कब है, low fertile day, high chance of pregnancy, low chance of pregnancy. ऐसा वहाँ पे मोड होता है, pregnancy mode. Once you get pregnant, you need to switch on the pregnancy mode. तो it's a very good app. You can check it out. Yeah, even I had downloaded the app, and Yeah. I was also putting all the details. Yeah, and it we were all- keeping a track of it together. Literally, on it. You had to work, we had to work for it. It's not as easy as you think. For some people it just clicks, but we actually worked on and around the ovulation date, and then finally after a lot of trial and error we conceived, and it was I think in the month of August 2018 that we found out, to be precise August 12th, or August 12th शाम को हम लोग ऑफिस से आ रहे थे. Actually what had happened was I was very addicted. Every month पीरियड थोड़ा लेट हो गया, खरीदो पीरियड ये प्रेगनेंसी टेस्ट एंड जस्ट गो एंड चेक इट, बट नेगेटिव आता था. सो दिस टाइम ही वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि हम ऐसे नहीं चेक करेंगे जल्दबाजी में, वील वेट. तो ऑन द वे फ्रॉम द ऑफिस इन द इवनिंग इट वॉज ऑलमोस्ट अ वीक डिले हो गया था, बट ही वॉज नॉट अग्रीइंग. ही वॉज लाइक नहीं. तो आई टोल्ड हिम कि आई एम गोइंग टू ड्रिंक पपाया जूस. So he said, no, it's okay, we'll go and buy the pregnancy test and we'll see what's going to happen. And वो भी शाम के टाइम पे. But यहाँ पे you get this any time pregnancy test. I think इंडिया में भी मिलता ही होगा any time pregnancy test. So you can try it any time. So evening का 7 PM something था. We went to the medical store below our building. खरीदा, घर पे जाके टेस्ट किया. And I saw एक लाइन आया, डार्क लाइन, and I was waiting कि okay. And देखा तो slowly it moved and a very faint second line popped up. But I was like not sure. I came out and I was like एक और बार we have to check it. I was like आया है, बहुत faint line. मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो भी pregnancy test किया उस सब का मैंने फ़ोटो एंड वो अभी भी मेरे पास है as a memory. So I will definitely show you the photo of it here somewhere. तो एकदम ही फेंट लाइन आपने देखा होगा, इट्स अ वेरी फेंट लाइन. देन वी वेंट अगेन नीचे और एक और ख़रीदा दैट टाइम इटसेल्फ, एंड हमने डिसाइड किया कि मैं वो अगले दिन सुबह टेस्ट करूँगी, बिकॉज वाई टू टेक अ चांस, लेट्स डू इट अर्ली मॉर्निंग. बिकॉज लोग बोलते हैं HCG हार्मोन जो है दैट इज़ द वन दैट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई इफ यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, यूजुअली द हाइएस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग यूरिन. सो दैट्स वाई आई थॉट लेट मी जस्ट ट्राई इट अगेन इन द मॉर्निंग वंस जस्ट टू बी श्योर. सो दैट वॉज August 13th 2018. अर्ली मॉर्निंग चेक किया, डार्क 2 लाइन्स आ गया. आई वॉज लाइक वेरी गुड, आ गया तो वी विल गो टू द डॉक्टर इन द इवनिंग इट सेल्फ एंड वी विल डू अ ब्लड टेस्ट to confirm and just start the process. So this is how it all began. And again ऑफिस में उस दिन तो पूरा दिन दिमाग उसमें ही चल रहा था. सर का अपॉइंटमेंट हुआ. यूज टू ट्रैवल बाय मेट्रो एंड बस. तो बस में बैठ के ही मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था डॉक्टर का. एंड वी इमीडिएटली आफ्टर 6 o'clock शिफ्ट खत्म हुआ, ही वॉज देयर एट दी ऑफिस. हम लोग भागे वहाँ से. आई थिंक 7 o'clock 7:20 समथिंग का अपॉइंटमेंट था. वी वेंट, गेव द ब्लड, विद इन हाफ एन आवर रिपोर्ट आ गया था 5 weeks प्रेगनेंट. So then we were like okay, very good, sure, 100% sure, अभी कोई टेंशन नहीं है. This is how it started. First 3 months टेंशन मिसकैरेज का होता है. इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, इफ़ योर यूट्रस इज़ नॉट हेल्दी, देन कुछ भी हो सकता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. द फर्स्ट 3 months, द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ योर प्रेगनेंसी. Whoever is watching this video, working during pregnancy is very important. आप प्लीज़ बेड रेस्ट पे मत जाइए या आपका जॉब क्विट मत कीजिए until and unless your doctor is advising you to do that. You have to be super active during your, obviously ओवर नहीं करना है जाके हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह, बट जो भी आप यूजुअली करते जा रहे थे, आपका डेली रूटीन जो था
प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट ओनली इफ़ योर डॉक्टर इज़ एडवाइजिंग यू कि नहीं आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ये है, ऐसा है, देन और इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट हेल्पिंग यू कोप अप विद द चेंजेस दैट इज़ हैपनिंग, देन डेफिनेटली यू शुड take a call and maybe quit your job or whatever. तो ऐसा आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट. 6th week ऑफ माई प्रेगनेंसी वॉज गोइंग ऑन. मुझे कुछ नोजिया नहीं था. आई वॉज ईटिंग रियली वेल, हेल्दी, म्यूसली. द केरला में हम नेंद्रपरम बोलते हैं. आई यूज टू हैव दैट एट 11 o'clock in the morning. I used to carry small tiffins with dates and pistachio, almonds, all that, created a nice timetable. I was like, okay, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. I want to eat healthy. Water, everything was going very well for 1 week. Then suddenly something happened out of nowhere. Itna bad vomiting started. It was horrible. It was so ridiculous. I was vomiting more than 4 to 5 times in a day, and full time I was feeling like I had that nausea sensation. So that is very irritating. People call it morning sickness. I had all day sickness. I could not eat anything. It was not because of smell. There were many people who were saying, is it because you're getting the smell of rice? Some people, जब चावल बनता है घर में तभी स्मेल आता है, तो कुछ लोगों को उल्टी होता है. बट मेरा ऐसा नहीं था. मुझे फुल टाइम ना कुछ स्मेल की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही सेंसेशन था. एंड आई यूज़ टू वॉमिट. कुछ पेट में नहीं रहेगा तो भी एक बाइल करके एक येलो चीज़ होता है, इट्स कॉल्ड बाइल, वो निकलता था. एंड द टेस्ट ऑफ इट रिमेन्स इन योर थ्रोट एंड अगेन यू कांट ईट एनीथिंग. सो जस्ट कंटिन्यूस प्यूकिंग. सो बट स्टिल आई वेंट टू ऑफिस फॉर 1 month विद दैट प्रॉब्लम. वन डे सैटरडे को मुझे छुट्टी होता था, बट ही डिडंट हैव छुट्टी. तो उस दिन शाम को मैं घर पे आई काइंड ऑफ फेंटेड. I fainted only. It was not kind of. I fainted flat on the bed. Usually when he comes, ये lights on and सब कुछ on रहता है. पूरा अंधेरा था रूम में. He came and now you can tell ना फिर क्या हुआ. It was complete dark when I came home and she was lying on the bed. So I went to her and asked what happened. She's not getting up. I was like, what is this? I tried to wake her up. I tried to shake her up, but nothing. She's not moving. Then thoda she started moving. And she's not able to even sit. तो ऐसे सिचुएशन में पता नहीं what to do, because घर पे तभी कोई था नहीं, बिकॉज मॉम आई नहीं थी और ब्रदर भी, मेरा भाई है वो भी आया नहीं था. सो आई वॉज देयर विथ हर अलोन. वी बोथ वर ओनली देयर इन द हाउस. सो कैसे करूँ, बिकॉज गाड़ी ड्राइव करना है, इसको लेके जाना है. ऑल्सो कि मुझे क्या हुआ है, क्या हो रहा है, कुछ पहले क्या हुआ. आई हैड नो एनर्जी बिकॉज मैंने पूरा दिन सिर्फ उल्टी किया था और मेरे पेट में एक बूंद पानी भी नहीं था. आई हैड जस्ट वॉमिटेड एंड सिचुएशन ऐसा था कि पानी पियेंगे तो भी बाहर आ रहा है. मतलब शी कांट इवन ड्रिंक वाटर. सो डिहाइड्रेटेड का लेवल आप समझ सकते हैं कितना बुरा था. तो ऐसा सिचुएशन हो गया था. देन लकीली माई ब्रदर केम इन. वो आया जॉब से. तो जैसे ही वो आया, आई टोल्ड हिम सी वी नीड टू गो बिकॉज शी इज़ नॉट फीलिंग वेल. तो उसने इमीडिएटली बोला ओके चलो निकलते हैं फिर. तो आई फटाफट मुझे बंदरों वाला सॉक्स वॉक्स पहना है, वो अजीब वाला कुछ भी मैंने ऐसे टाइम पास के लिए वो खरीद के रखा था फ्रॉम डे टू डे. ऐसा सैंटा क्लॉज सॉक्स, वेरी लॉन्ग वंस, दैट ऑल ही कैरीड विद हिम. एंड पता नहीं कुछ भी जो नाइट ड्रेस था वही पहन के, ऊपर से कुछ स्वेटर जैसा कुछ पहन के, एंड जस्ट ही हेल्ड मी एंड टुक मी टिल द लिफ्ट. फिर गाड़ी में कैसे तो करके बिठा दिया. एंड देन हॉस्पिटल में my brother-in-law, he stopped the car there. We both got down. I was trying my level best to stand, but जो main lady थी वो hospital की, she was outside. The director, or I don't remember who, she was outside and she saw my condition and she was like, please get the wheelchair. उसको देख कर ही पता चल गया कि this is like very something serious. case. So she was like, just she called for the wheelchair and the person came, जो उस पे बिठाया, and then they moved me to one of the emergency cubicles. Yeah, and वहाँ पे they checked my temperature, so it was slightly high, and they inserted those what do you call, the glucose drips and some medicine. They asked me whether I'm pregnant. I was 12 weeks pregnant that time. So they said, okay, these are pregnancy safe medicines, because they said I'm completely dehydrated and they had to infuse liquids and things like that. And वो सब करके they didn't admit me, but whole कितना घंटा, almost
3 to 4 hours. या 3 to 4 आवर्स उन लोगों ने फिर बाद में चेक किया द टेम्परेचर हैड बिकम नॉर्मल, सो दे सेड दैट यू कैन गो बैक होम एंड रेस्ट, दे डोंट नीड टू एडमिट मी. दे डिड एन अल्ट्रासाउंड टू सी इफ द बेबी इज फाइन. बेबी वॉज सुपर एक्टिव. दैट्स व्हाट द डॉक्टर वॉज लाफिंग दैट द मदर हैज फेंटेड एंड द चाइल्ड इज बिजी मूविंग द हैंड legs and everything, and itnu sa tha, looking like an alien. I remember when you came inside to see, you were like, my god, it's looking like an alien. Only the two eyes ऐसे dot था and face एकदम वो वैसे ही alien type, and only tiny hand and leg that's continuously moving, like jumping like that. So the doctor was like, hyperactive kid, but the mother is fainted and the kid is like busy jumping inside. So we were like, thank god, मेन थिंग बच्चा सेफ है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड नाउ इवन माई टेम्परेचर वॉज फाइन. सो दे सेड यू कैन लीव, देयर इज़ नो नीड ऑफ टू बी एडमिटेड. एंड दे, तो ये उस दिन का फ़ोटो है. एंड अगले दिन आई वाइल गोइंग टू ऑफिस आई फेंटेड इन द मेट्रो, बिकॉज ऑफ विच आई हैड टू क्विट माई जॉब, क्योंकि अनमैनेजेबल हो गया था एंड इट वॉज वेरी रिस्की टू ट्रैवल लाइक दिस. सो दैट वे द जर्नी ऑफ माई वर्क लाइफ इन UAE एंडेड, बट a new journey started, my pregnancy journey. पहला मैं एक हॉस्पिटल में जाती थी. आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स हियर, कौन सा हॉस्पिटल था, क्योंकि वहाँ पे आई वॉज नॉट पर्सनली सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ दैट, और कुछ नहीं. आई चेंज दैट हॉस्पिटल ड्यूरिंग द 32nd वीक ऑफ माई प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ माई ओन पर्सनल रीजन्स. सो बट स्टार्टिंग का पूरा कंसल्टेशन जो भी था वो ये हॉस्पिटल में था. आई एम नॉट गोइंग टू गो ट्राइमेस्टर वाइज. ओवरऑल मुझे वॉमिटिंग का ही प्रॉब्लम था. उसके लिए अगर आपको एक टिप मैं दे सकती हूँ, आई एम श्योर everybody's pregnancy is very different. If you have nausea problem, I found on the internet one article where one lady said she had a similar problem and what helped her was salted potato chips. तो मैंने सोचा इतना सब कुछ ट्राई किया है. क्रैकर्स लोगों ने बोला था वो ट्राई किया, लेमन वाटर बोला था वो ट्राई किया, ऐसे बहुत सारे होम रेमेडीज़ बोले थे, सब ट्राई किया. नथिंग वॉज वर्किंग आउट विथ मी. अचार, चॉकलेट, कैंडी, नथिंग वॉज हेल्पिंग. देन आई थॉट ओके इतना सब ट्राई किया है तो लेट मी ट्राई दिस एज वेल. सॉल्टेड पोटैटो चिप्स मंगवाया, एंड वो इफ़ आई वॉज स्टफिंग लाइक इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बट बिकॉज ऑफ माई सिचुएशन टू कीप फूड इन साइड माई स्टमक फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, ताकि थोड़ा सा भी न्यूट्रिएंट्स इफ इट कैन go to the baby, then just for that sake I was stuffing in little potato chips to keep the food inside the stomach for some time. Otherwise my situation was like एक sip दूध का लिया and done, everything out. So situation was horrible. You don't need to overdo anything. Like you can have chocolate, you can have cake, you can have chips, but everything in limits. You don't have to suddenly become this diet conscious person, what you are not. If you're already like that, very good, but if you're not, then just because you're pregnant you can't change your complete lifestyle, but you just need to do everything in limits. That is what is very important. So ऐसा चलता गया, and 8th month में हम लोग गए थे for your car servicing or something. Renewal of his car. This renewal of his car is very important. This year also हमारे anniversary में था वो, and last time also it was very funny thing. It's what happened was we went for his car renewal का process. Evening में गए थे हम लोग because 8 बजे 9 बजे तक वो होता है, तो he used to come late. So we had gone in the evening and I was complaining about this जो periods के पेन के सिमिलर मुझे एक पेन आ रहा था फ्रॉम प्रीवियस नाइट. आई वॉज कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट समटाइम्स वो पेन आता है, समटाइम्स इट्स बिकॉज ऑफ गैस, बट आई डेंट हैव एनी गैस प्रॉब्लम ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ईट ओनली मच. आई वॉज ईटिंग वेरी लिटिल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ईट every 2 hours small meals and drink plenty of water. That is really going to help you. You will not have constipation, you will not have gas problem if you have small meals after frequent intervals. That is really going to help you. So I was following that only. Even if I was vomiting, every 2 hours I was eating something. nuts हो गया या fruits हो गया, and दोपहर को थोड़ा दाल चावल कुछ सब्जी, फिर शाम को again some digestive biscuit or something like that I was eating. Then again रात को, तो ऐसे continuous every 2 hours something छोटा मोटा I was eating. So I never had any gas problem nor constipation problem, कुछ नहीं था मुझे. So you can follow this, maybe it can help you as well. So coming back to what happened on that day was he told me you do one thing, डॉक्टर को व्हाट्सएप कर कि मुझे ऐसा पेन हो रहा है. So I WhatsApped her, तो immediately उनका रिप्लाई आया कि you just go and report to emergency.
क्योंकि मेरा 8th मंथ स्टार्ट हो गया था। तो शी टोल्ड मी यू जस्ट गो एंड रिपोर्ट टू इमरजेंसी, सो लेट देम चेक। लोग फटाफट वो रिन्यूअल का काम ख़त्म करके या वी जस्ट लेफ्ट टू द हॉस्पिटल। हम वहाँ पहुँचे, इमरजेंसी में रिपोर्ट किया, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स अवेलेबल थे उनसे हमने कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कुछ चेकअप्स करने पड़ेंगे। इट कैन बी प्रीटर्म लेबर, Yeah. तो वाई टू टेक अ चांस। तो उन लोगों ने अपने साइड से ऐसा डायग्नोज, ऐसा कुछ बोला नहीं कि 100% वो है, बट कैन बी, तो वाई टू टेक अ चांस, तो वो रीज़न के लिए एडमिट होना पड़ेगा। एक्चुअली वी काइंड ऑफ फ्रीक्ड आउट कि ये अभी एडमिट होने बोल रहे हैं, हाँ। मतलब व्हाट इज़ इट, और कोई और रह नहीं सकता, ओनली शी कैन बी देयर इन द हॉस्पिटल। तो हम लोग यही, मतलब पता नहीं था करना क्या है और अकेले छोड़ नहीं सकते। तो फिर हमने डिनर भी नहीं किया हुआ था, तो हमने बोला कि हम लोग डिनर करके आते हैं, उसके बाद विल सी व्हाट हैज़ टू बी डन। या तो हम गए, डिनर किए, और हम जब वापस आए तो हमने उनको बोला कि इज़ इट ओके इफ़ आई कैन कम टुमारो मॉर्निंग, या बिकॉज ओवरनाइट अकेले छोड़ना, कोई नहीं होगा साथ में, इट्स अच्छा, मतलब अजीब लग रहा था। तो देन फिर उन्होंने बोला ऐसा इट्स है अप टू तो यू, एक पेपर पेपर, साइन करवाया मुझसे, गोइंग होम एट योर ओन रिस्क एट योर ओन रिस्क, सो ऐसा समथिंग लाइक दैट, उस पर साइन करवाया एंड दे सेंट मी।